Let's start with thermodynamics. So before I start the derivation, we need couple of things. Okay. सबसे पहला we need first law of thermodynamics. dq is equal to du plus dw. What is dq? It is heat, right? Okay. You should know that if heat is consumed by the gas, okay, if heat is absorbed by the gas, heat absorbed by gas, okay, we take it positive, है ना? If heat is emitted by the gas, then we take it as negative, है ना? Okay. ऐसे ही du is change in internal energy. What is the formula of du? It is F by 2 nR dt. Okay. If dt is dt is taken as positive, या du is taken as positive if temperature increases, है ना? ठीक है. और du is taken as negative if temperature decreases, है ना? मतलब if Tf is more than Ti, we will say कि du is positive. If final temperature is less than initial temperature, we will say कि du is negative, है ना? Temperature increases, du positive, temperature decreases, negative. What is F? F is degree of freedom. Degree of freedom, है ना? ठीक है. Okay, what is degree of freedom for monatomic gas? For monoatomic it is 3 and for diatomic it is 5. ठीक है. Okay. Also work done. What is the formula for work done? Or whatever is PdV. If you want total work done, it will be integration of PdV where volume changes from V1 to V2, isn't it? है ना? So we can say that it is also equal to area under PV curve. ऐसे बोल सकते हैं. PV curve अगर है तो उसका एरिया निकाल लो तो you will get the work done, isn't it? Okay. Also, if volume increases, we can say that work done is positive, है ना? If volume decreases, we will say work done is negative, है ना? ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए. ओके. और ये सब में यू शुड अंडरस्टैंड कि du डिपेंड्स ओनली ऑन dt, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, राइट? इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन. इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं. बट बेसिकली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस दैट वी यूज. ओके. बट dw ओके विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस. ठीक है. ओके. वेदर इट्स आइसोथर्मल, आइसोबेरिक या एडियाबैटिक, किसके उस पर वो dw चेंज कर देगा. और dw चेंज हुआ अगर तो dq भी चेंज होगा, राइट? तो dw एंड dq बोथ आर प्रोसेस डिपेंडेंट, और वी कैन से दे आर पाथ फंक्शन. दे डिपेंड ऑन द पाथ ऑन द पीवी कर्व. तो इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं अपन. ठीक है. ओके. और एक और चीज़ चाहिए मुझे. ओके. वी नीड डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, है ना? मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज C is equal to dq upon n dt, है ना? Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius. Okay, तो ये पता होना चाहिए हमको. dq हम निकालेंगे. For every process we'll find dq. Okay, तो for every process we'll find C also. Okay, is making sense? समझ में आएगा? Okay, और क्या अपने पास? एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT तो पता ही है अपने को, है ना? PV इज प्रेशर, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज योर नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज इन केल्विन. ठीक है. लेट्स टेक द फर्स्ट प्रोसेस. लेट्स टेक स्टार्ट विद आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस. इसका डेरिवेशन में दे विल आस्क यू डेरिवेशन फाइंड वर्क डन, but we'll do all the points. First, let's start the process definition. When I say isothermal, that means temperature is constant. Temperature is constant. That means delta T will be 0. There is no change in temperature, है ना? If temperature is constant, we can say PV equal to nRT में this side is constant, so we can say PV is equal to constant, isn't it? Or I can say P1 V1 is equal to P2 V2. Pressure and volume both can change, but temperature will remain same, है ना? ये हो गया process definition. नाउ वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन के लिए क्या लिखना होता है कि यू एज्यूम दैट कि पिस्टन इज समवेयर हियर राइट नाउ, प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, एंड विथ आइसोथर्मल प्रोसेस वी आर एबल टू चेंज द प्रेशर एंड वॉल्यूम टू सम P2 एंड V2. प्रेशर वॉल्यूम को P2 और V2 में चेंज कर दिया. ओके. नाउ ये पिस्टन आगे गया है तो वर्क हुआ होगा. तो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस टू चेंज द वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2? What is the work done?
ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? वर्क डन इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, राइट, वेयर वॉल्यूम गोज फ्रॉम V1 to V2, इजंट इट? अभी प्रेशर तो वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वी कैन चेंज इट टू nRT/V, है ना। प्रेशर को हम nRT/V लिख देंगे, तो वी गेट वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ nRT/V dV, where volume is going from V1 to V2. N is constant, R is constant, temperature is also constant because isothermal process. Integration of 1/V dV is ln V, where it goes from V1 to V2. That will be nRT ln V2 minus ln V1, which is simply nRT V2/V1. Correct? And see, you see यहाँ पे, okay, P1/P2 is equal to V2/V1. We can say that. तो ये सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, तो यू गेट nRT ln P1/P2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. दिस कैन बी आस्क्ड, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ आएगा वर्क डन का फॉर्मूला? ओके, नाउ लेट्स लुक एट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पे देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया अगर dq इज इक्वल टू du plus dw, okay, so we can we say that du is 0 because dt is 0, there is no change in temperature ना, तो du 0 है यहाँ पर, isn't it? So therefore we can say that कि dq should be equal to dw. So this is first law. In isothermal process whatever heat is supplied will be go in the work done ना, work done में चले जाएगा वो, या उल्टा वर्क कर दिया तो हीट रिलीज हो जाएगा, isn't it? Okay, last, हाउ डू आई ड्रॉ द ग्राफ? पीवी ग्राफ कैसा होगा इसका? पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, so it will be a rectangular hyperbola, है ना. This is rectangular hyperbola. ठीक है, and work done can be shown like this. We can say when the volume goes from some V1 to some V2, तो ग्राफ में जो वर्क होगा it looks like this. This is the area under the curve will be your work. Okay, and if I have to write यहाँ पे molar heat capacity C T is equal to dq upon n dt. Since dt is 0, we can this Ct will be infinity. Basically, we cannot define molar heat capacity here because there is no change in temperature only. समझ आएगा? Okay. So this is it. I think if you know this much, it's enough. Mostly for derivation, they can ask you work done, or they can ask you any of this as 1 or 2 mark का क्वेश्चन. कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, है ना. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सेकेंड प्रोसेस एडियाबैटिक लेते हैं. कुछ भी डाउट है तो पूछो आप बीच में. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या है? देखो, अभी इसमें सबसे पहला बोलेंगे कि हीट इज कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो देयर इज नो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइडेड. ओके, तो हीट इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वी कैन से डेल्टा क्यू इज 0. ओके, नाउ यहाँ पे व्हेन यू राइट पीवी रिलेशन, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल थ्री कैन चेंज. तो आई कैन राइट P1 V1 is equal to nRT1 or P2 V2 is equal to nRT2. Only heat is not going to change, but this ये पैरामीटर्स जो है अपने वो सब चेंज हो सकते हैं. ठीक है, और PV इक्वल टू nRT द आइडियल गैस एक्सप्रेशन वो वैलिड है. साथ साथ में एक और रिलेशन वैलिड है विच इज PV रेज टू गामा इज कॉन्स्टेंट. दिस रिलेशन इज ऑल्सो वैलिड. व्हाट इज गामा हियर? एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट या एडियाबैटिक रेशियो बोलते हैं इसको. ओके ओके, बेसिकली गामा इज रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी टू कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये CP/CV का जो फॉर्मूला है वो आगे देखेंगे, बट दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 + 2/f. गामा डिपेंड्स ऑन योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. बेसिकली इट विल डिपेंड ऑन वेदर गैस इज मोनोटॉमिक और डायटॉमिक, है ना. तो मोनोटॉमिक के लिए भी नो f इज इक्वल टू 3. तो फॉर मोनो f इज 3, विच मीन्स गामा विल बी हाउ मच? इट विल बी 5/3, है ना. एंड फॉर डाया, ओके, वी कैन हैव f इज इक्वल टू 5, तो गामा कितना मिलेगा? 7/5 मिल जाएगा.
है ना। और यहाँ पे ये मैंने पीवी रिलेशन लिखा है, हम इसमें वीटी या टीटी रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। वी कैन सब्स्टिट्यूट पी और वी कैन सब्स्टिट्यूट वी हियर। तो बट अभी फिलहाल के लिए आई नीड ओनली द पीवी रिलेशन, इसलिए आई हैव रिटन ओनली पीवी रिलेशन। P2 V2 रेज़ टू गामा इज इक्वल कांस्टेंट कैन बी रिटन। तो इन एडिशन टू योर पी वी इक्वल टू एनआरटी, ये वाला इक्वेशन पी वी रेज़ टू गामा भी वैलिड है। ओके, ये ध्यान रखना है अपने को। इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे बिकॉज HSC का स्कोप का बियॉन्ड है। ओके ठीक है, लेट्स लुक एट द वर्क डन। ओके, वर्क डन में क्या होगा, क्योंकि ऑल द 3 पैरामीटर्स कैन चेंज, तो यू कैन से वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ P dV, that's the definition of work done, where volume goes from V1 to V2। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आई सब्स्टिट्यूट P एज K अपॉन V रेज़ टू गामा। तो लिखा मैंने इसको K अपॉन V रेज़ टू गामा, यहाँ से ले रहा हूँ मैं। ओके, dV वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या मिलेगा देखो। ओके, यू विल गेट दिस V रेज़ टू गामा विल गो अप, तो इट विल बी V रेज़ टू गामा विल गो अप, तो इट विल बी V रेज़ टू माइनस गामा, राइट। एंड x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला विल यूज, तो V रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो उसको माइनस गामा प्लस 1 लिखने से अच्छा 1 माइनस गामा लिख लेते हैं। तो k बाहर है, तो यू हैव V रेज़ टू 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा रेज़, ये आ जाएगा V1 टू V2। समझ में आया ना क्या लिखा मैंने। ओके, अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, k को भी बाहर रखो। ओके, पुट सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, यू हैव V2 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। अब k को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो यू हैव 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यू हैव k V2 1 माइनस गामा माइनस k V1 1 माइनस गामा। अब देखो स्मार्टली हम लोग k का वैल्यू क्या करेंगे। ओके, वी नो दैट P1 V1 रेज़ टू गामा, P2 V2 रेज़ टू गामा इज k, राइट। तो जहाँ पे 2 के टर्म्स है वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करो k का वैल्यू, और जहाँ पे 1 के टर्म्स है वहाँ पे वी कैन सब्स्टिट्यूट P1 V1 रेज़ टू गामा। तो वैसे करते हैं देखो, तो यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट P2 V2 रेज़ टू गामा, यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट P1 V1 रेज़ टू गामा। तो सी व्हाट डू वी गेट P1 V1 सॉरी यहाँ पे 2 के टर्म्स, P2 V2 रेज़ टू गामा, V2 रेज़ टू 1 माइनस गामा, यहाँ पे विल राइट P1 V1 रेज़ टू गामा, V1 1 माइनस गामा। व्हाट डू आई गेट, है ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। यू विल गेट P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, P2 V2 इज nRT2 एंड P1 V1 इज nRT1। तो यू कैन राइट इसको nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, दैट्स द फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो कुछ खास डेरिवेशन नहीं है, खाली x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव। ठीक है, थोड़ा याद आएगा अपने को ये सब। तो ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं और बाकी भी कर लेते हैं। देखो ओके, हमने ये निकाल लिया ना। वी कैन यूज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो here dq इज 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन हीट। यू कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि वर्क इज डन, du इज माइनस ड्यू, वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। कोई भी वर्क हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी उसमें यूज हो जाएगा, एंड वाइसा वर्सा। ओके, फिफ्थ ग्राफ, ग्राफ कैसा आएगा इसका। तो यू शुड नो दैट कि हमने ये ग्राफ बनाया था PV कांस्टेंट, राइट। P इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज आइसोथर्मल का ग्राफ, इजंट इट। ओके, इफ आई इंक्रीज द पावर ऑफ V, पावर ऑफ V बढ़ेगा तो क्या होगा कि ग्राफ विल गो थोड़ा, इट विल डिप डाउन, तो ग्राफ गोस लाइक दिस। दिस इज ग्राफ ऑफ P रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सेम ग्राफ बट इट डिप्स अ लिटिल बिट। ओके, मोर द पावर ऑफ V द ग्राफ विल डिप, उतना ज़्यादा नीचे। ओके, और इसमें वर्क दिखाना है तो ऐसे दिखा दो। दिस इज वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम V1 टू V2, दिस इज द वर्क, करेक्ट। हाउ अबाउट मोलाइट कैपेसिटी, C एडियाबैटिक इज dq अपॉन n dt। अभी dq ही 0 है, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट एडियाबैटिक प्रोसेस में मोलाइट कैपेसिटी विल बी 0। ठीक है, एक बार देख लो, कुछ पूछना तो पूछ लो, है ना।
हीट इज कांस्टेंट पीवी रिलेशन, ओके, वर्क डन, करेक्ट। एंड वहाँ पे गामा क्या है वो डिस्कस कर लिया हमने, और एक बार इंटीग्रेट करके उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ खास बात नहीं है, ओके। एंड देन वंस यू हैव दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड लास्टली ग्राफ और हीट कैपेसिटी, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट ले लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ओके। आइसोबेरिक प्रोसेस, इस पे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, स्पेशली फर्स्ट लॉ के ऊपर देखते हैं, अभी समझ में आएगा। आइसोबेरिक मतलब क्या है? प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, ओके। डेल्टा पी यहाँ पे जीरो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीवी रिलेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी में ओनली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज चेंजिंग, राइट। तो वी कैन से दैट यहाँ पे V इज प्रपोर्शनल टू T, और वी कैन से V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, इजंट इट, है ना। प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इस खाली हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा, तो वी कैन राइट दिस, ओके। थर्ड, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ P dV वेयर वॉल्यूम गोज फ्रॉम V1 टू V2। अब इसको आराम से लिख सकते हैं हम लोग कि P तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो प्रेशर को बाहर निकाला तो इंटीग्रल dV, integration of dV is V, okay. When you put the limits, so what do you get? You will get P V2 minus V1, या इसको हम लिख सकते हैं P डेल्टा V, एंड P डेल्टा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और है ना, P V2 is nRT2 and P V1 is nRT1, तो we can write nR डेल्टा T भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। First law when you apply dq, yeah, we can write delta q is equal to delta u plus delta w, okay. यहाँ पे से अंडरस्टैंड कि कोई भी टर्म जीरो नहीं है ना, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ना ये हीट भी सब, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली नथिंग इज जीरो हियर, बट वी नो दैट कि डेल्टा यू का फॉर्मूला इज F/2 NR डेल्टा टी by definition, isn't it, okay. And we know that कि डेल्टा W का फॉर्मूला अभी भी निकाला है, वर्क डन, टोटल वर्क डन, इट इज NR डेल्टा T, तो NR डेल्टा T इसको सब्स्टिट्यूट करो तो यू विल गेट डेल्टा Q का वैल्यू है, यू सब्स्टिट्यूट NR डेल्टा T करके कॉमन, तो F/2 + 1 NR डेल्टा T, isn't it, which basically means कि D डेल्टा Q is to डेल्टा U is to डेल्टा W, क्या मिलेगा भाई? F/2 + 1 is to F/2 is to 1, सही लिखा है ना, है ना। मतलब कोई एक वैल्यू पता है तो दूसरा वैल्यू निकाल सकते हो इधर रेशियो, तो इस पे क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, दे कैन गिव डेल्टा यू, दे कैन आस्क यू डेल्टा W, या कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब बोला हीलियम दिया है, उसका हीट दिया है ना, तो हमको पता है कि हीट और इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का रेशियो क्या है, तो कोई भी एक वैल्यू दिया तो बाकी तो हम निकाल सकते हैं, ना, ठीक है। एग्जांपल ले लो, चलो बता दो फटाफट। एग्जांपल अगर मैंने बोला कि हीलियम है, ओके, एंड लेट्स से उसका हीट सप्लाइड इज 200 जूल्स, एज आई आस्क यू कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस इफ द प्रोसेस इज आइसोबेरिक। अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है, हीलियम दिया है और पूछ रहा है कि बताओ वर्क डन कितना है, अगर हीट सप्लाइड 200 है, तो कैसे कर लेंगे इसको? हीलियम दिया है मतलब व्हाट इज एफ का वैल्यू? 3 ना, 3, एफ इज 3 मोनोटॉमिक, राइट। तो वी कैन से दैट कि डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? It will be F/2 + 1 is to 1, right? That means 3/2 + 1 is 5/2 is to 1, तो बेसिकली 5/2, तो लिख दो, अभी हो गया ना। तो therefore we can say that delta W work done will be simply how much? It will be 2/5 into 200 which is how much? 80 है क्या? समझ गया ना मतलब। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। रेशियो है तो कोई एक पता है दूसरा हम निकाल सकते हैं, समझ में आएगा। ये इस पे क्वेश्चन बनाते हैं तो CT VT नहीं पूछ लेते हैं, मेन से ही पूछ लेते हैं।
ठीक है, फर्स्ट लॉ. ओके, नेक्स्ट ग्राफ. ग्राफ इज वेरी इजी. ग्राफ 5 है ना? यस. हाँ, ग्राफ कैसा का भाई? पीवी ग्राफ. प्रेशर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स इट हैज टू बी अ ग्राफ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सिंपल है ना. और वर्क डन दिखाना है तो अगर समझ लो वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है तो वर्क डन इज दिस इज द वर्क डन. एरिया अंडर पीवी कर्व. ओके, लास्टली मोलर हीट कैपेसिटी CP है ना. मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर इज dq upon n dt. That's the formula. Okay, that should be equal to, what is dq का value? It is f by 2 plus 1 nr dt upon n dt. So dt by nn by you get cp का formula is f by 2 plus 1 into r. हो गया. ठीक है, समझ आ रहा है क्या? इजी है, मतलब खाली फॉर्मूला हमको बाहर रखना है, और नहीं भी आया बाहर तो इसको डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है ना. ठीक है, दिस आर द इम्पॉर्टेंट स्टफ फॉर योर आइसोबेरिक. आइसोकोरिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सॉरी. फर्स्ट, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना. वॉल्यूम कांस्टेंट ऑफ द डेल्टा V is not happening. Okay, if I apply PV equation, PV equal to nRT, so volume constant, that means pressure is proportional to temperature, or you can say P1 upon P2 is equal to T1 upon T2. है कि नहीं? है ना. और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? थर्ड, वर्क डन. वर्क डन क्या होगा इसका? वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ P dV, बट dV जीरो है ना. ठीक है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, राइट. तो यू कैन से वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी ऑब्वियसली जीरो, है ना. अगर पिस्टन मूव नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन होगा ही नहीं. ओके, एंड ठीक है, वर्क ही नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिखेंगे हम. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. में ये टर्म कट गया तो वी कैन देयरफॉर दिस से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, है ना, इज इक्वल टू व्हाट? एफ बाई 2 n r डेल्टा टी. तो ये फार्मूला जो डी यू का फार्मूला लगेगा वही फार्मूला डी क्यू को भी लग जाता है यहाँ पर, है ना. इनफैक्ट यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है. ठीक है, ओके, विच वी हैव टू सी. यहाँ पे दिखाते हैं तुमको. व्हेन यू डू ग्राफ तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद एक डेफिनेशन ऑफ CV विच कैन बी जनरलाइज्ड यहाँ पे. ओके, विल सी दैट. PV ग्राफ कैसे आएगा? देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ग्राफ हैज टू बी पैरेलल टू बाय एक्सिस, करेक्ट. नो वर्क डन, देयर इज नो एरिया अंडर कर्व. अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, CV इज इक्वल टू DQ अपॉन n dt, है ना. ये हमारा फॉर्मूला है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ CV, राइट. ओके, बट DQ और DU का वैल्यू सेम है इस प्रोसेस में, है ना. ठीक है, तो वी कैन राइट DU अपॉन n dt लिख सकते हैं इसको, है ना. एक्चुअली ये DU का डेफिनेशन, DU इस f बाई 2 nRT तो है, ठीक है, बट DU को हम लोग कभी भी इन न्यूमेरिकल्स यू कैन सब्स्टिट्यूट एज DU एज CV n dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ये भी एक डेफिनेशन होता है DU का, समझा. CV बोला मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये सब कुछ इक्वल हो जाएगा, मतलब समझ में आया क्या. तो DU इज f बाई 2 nRT, दैट इज फाइन, बट इज ऑल्सो इक्वल टू NCV dt, है ना. बुक्स में एक्चुअली इसको NCV dt लिखते हैं, तो वैसे लिखता हूँ मैं. तो DU इज ऑल्सो इक्वल टू NCV dt. ये कभी भी तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इन एनी न्यूमेरिकल्स, है ना. DU इज ऑलवेज इक्वल टू NCV dt, या CV इज एक्चुअली DU बाई dt का चेंज और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही बोल सकते हो, है ना. ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर मोल, ऐसे भी बोलते हैं बहुत लोग CV को. बट ये अच्छा है, एक और DU का एक और फॉर्मूला मिल गया अपने को. एक दूसरा फॉर्मूला है NCV dt, तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आता है ये. अच्छा, ठीक है, यहाँ पे देख लो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DU? इट इज f बाई 2 n r dt अपॉन यहाँ पे n dt है, dt बाय ln बाय, एंड यू गेट द फॉर्मूला फॉर CV एस f बाई 2 इंटू, है ना. सही है ना. ठीक है, f बाई 2 इंटू आर. f पता है तो हम CV निकाल सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन मोनो या डाई. ठीक है, आई थिंक प्रीटी मच एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. ओके, ऑल डेरिवेशंस. एक छोटा सा पार्ट और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं.
ओके ओके हीट HSC पॉइंट ऑफ व्यू से हीट इंजन वर्सेस हीट पंप बोलते हैं बहुत लोग, बट आइडली इसको रेफ्रिजरेटर ही बोलना चाहिए। ओके, तो इट इज पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, वहाँ पे इसको डिस्कस करते ज़्यादा हम लोग। हीट इंजन वर्सेस हीट रेफ्रिजरेटर। सी इंजन का काम क्या है, ओके कि वो तुमको आउटपुट में वर्क देगा, ओके बट वो वर्क आता कहाँ से, यू बर्न, मतलब कोल बर्न करके स्टीम बनाओ, स्टीम से जो पावर मिलेगा उसको हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं जनरली स्टीम इंजन्स में, ओके तो कहीं ना कहीं से हमको हीट चाहिए होता है ना, ठीक है। तो हीट जो आ रहा है उसको बोलते हैं, जहाँ से हीट हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग हीट सोर्स या हीट रिजर्वायर बोलते हैं इसको, रिजर्वायर, ओके है ना। अभी टेम्परेचर रिजर्वायर तुम T1 बोल सकते हो, या HSC में हम उसको TH हायर टेम्परेचर बोलते हैं। हायर टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर हायर, तो TH ज़्यादा पॉपुलर है HSC में, ओके। अब हायर टेम्परेचर से तुम हीट निकाल रहे हो और उसको कन्वर्ट कर रहे हो वर्क में, बट यू नो दैट कि एंटायर हीट विल नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क, सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट, ठीक है, कुछ हीट वेस्ट भी हो जाएगा। तो जो हीट वेस्ट हो रहा है वो जा रहा है एनवायरनमेंट में, जनरली एनवायरनमेंट इज एट लोअर टेम्परेचर, ओके तो उसको हीट सिंक बोलते हैं हम लोग, हीट सिंक, जहाँ पे हीट वेस्टेड हीट जा रहा है, ओके एंड यहाँ पे जितना हीट गया उसको हम Q2 बोल रहे हैं, ओके या इसको यहाँ इसका टेम्परेचर T2 बोल सकते हो, या जनरली सिंक इज एट अ लोअर टेम्परेचर तो वी से इसको TL मतलब T लोअर। तो हायर टेम्परेचर में सोर्स है और लोअर टेम्परेचर में सिंक है, ठीक है, ओके एंड दिस कन्वर्ट्स टू वर्क। तो यहाँ पे एनर्जी वाइज हम बैलेंस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कैन वी से दैट कि Q1 is equal to the Q1 converts to work as well as some amount of heat is wasted. So this we can always write. And if I have to define efficiency here, efficiency define करना है अगर, okay, तो ईटा लिख सकते हैं उसको, okay, and it is defined as what? Efficiency generally क्या होता है कि क्या आउटपुट मिल रहा है वर्सेस क्या इनपुट है ना, into 100, okay, करेक्ट। तो आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है इंजन से कि कितना वर्क मिल रहा है हमको, राइट, तो वी कैन राइट इसको वर्क डन अपॉन इनपुट में हम हीट कैप्चर कर रहे हैं सोर्स से, तो Q1 W अपॉन Q1 लिख सकते हैं, समझा। एंड W को व्हाट वी कैन राइट, वी कैन कन्वर्ट W एज Q1 माइनस Q2, ये यहाँ जाएगा तो विल गेट Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 विच इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस Q2 बाई Q1, करेक्ट। और वी कैन प्रूव दिस टू व्हाट, 1 माइनस, इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, तो T2 बाई T1 लिख सकते हैं, है ना, ओके। T2 मतलब क्या है, टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, एंड T1 क्या है, हायर टेम्परेचर, तो क्या है TL अपॉन TH, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, समझ आया क्या? हाँ, सो फॉर हीट पंप व्हाट डू यू राइट, यहाँ पे हीट पंप क्या करेगा या हीट रेफ्रिजरेटर, ओके इट विल डू एग्जैक्टली उल्टा ऑफ व्हाट दिस इज डूइंग, ओके ये क्या कर रहा है कि एक एक्स अमाउंट ऑफ हीट इट विल टेक आउट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन, ओके जैसे अपना रेफ्रिजरेटर बॉक्स का काम करता है वैसे ही है, मतलब ठीक है, कोल्ड रीजन को और कोल्ड करने का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो कैसे करेगा वो, एक रूम से, पर्टिकुलर रूम से या पर्टिकुलर चेंबर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो चेंबर ऑलरेडी कोल्ड है, समझ में आ रहा है क्या, ओके तो यहाँ से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेट्स से दैट टेम्परेचर ऑफ दिस चेंबर इज TL, लोअर टेम्परेचर पे है, और वो हीट निकाल के कहाँ फेंकेगा, वो इट विल थ्रो इट इन द एनवायरमेंट, राइट, बाहर फेंक रहा है, राइट, और वो जो एनवायरमेंट टेम्परेचर है इट इज़ एक्चुअली हायर टेम्परेचर, तो जहाँ पे वो फेंक रहा है हीट को या जहाँ पे थ्रो कर रहा है उसको, ठीक है, इट्स जनरली एट अ हायर लेवल या हायर टेम्परेचर, तो Q1 अमाउंट ऑफ इट इज एक्सट्रैक्टेड एंड इट इज बीइंग पम्प्ड आउट, उसको पंप करके हम बाहर फेंक दे रहे हैं, समझ में आया क्या। बट ये प्रोसेस के लिए हीट को एक जगह से उठाकर हमको बाहर ले जा, कहीं और ले जाना है, तो वी हैव टू पुट वर्क, हमको वर्क करना पड़ता है तभी ऐसा होता है, तो यहाँ पे इनपुट में वर्क जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो कैन वी राइट यहाँ पे कि Q1 प्लस W शुड बी इक्वल टू Q2, इजंट इट, है ना। व्हाट इज Q1, इट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड चेंबर, Q2 इज द हीट विच इज थ्रोन आउट इन द हॉट चेंबर, ओके एंड प्रोसेस के लिए वर्क जो कर रहे हैं वो W है, तो यहाँ पे वर्क इनपुट है, वहाँ पे वर्क आउटपुट आ रहा था, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। अब इसमें वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अल्फा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी यूज़ नहीं करते वर्ड, यहाँ पे यूज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि हम अगर बहुत कम वर्क करके ज़्यादा हीट निकाल रहे हैं तो इसे दैट इज़ अ वेरी गुड रेफ्रिजरेटर,
मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा कोल्ड कर रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? तो वैसा टाइप का डेफिनेशन है यहाँ पर. तो इट्स हीट एक्सट्रैक्टेड पर वर्क डन. इज मेकिंग सेंस? ओके, एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? Q1 अपॉन, ओके, वी कैन सब्स्टिट्यूट वर्क एज Q2 माइनस Q1, एंड इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो यहाँ पे Q1 के जगह पे आएगा TL अपॉन दिस विल बी TH माइनस TL. ठीक है? ओके, इनफैक्ट इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, TH माइनस TL अपॉन TH. फॉर एफिशिएंसी टू बी हाई, TH माइनस TL शुड बी हायर. समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो TH माइनस TH शुड बी लेसर वैल्यू. तो ये सब MCQ बना के पूछ लेते हैं कि TH माइनस TL का क्या होगा मतलब. ठीक है, आई थिंक अभी के एक CET टेस्ट में हमने पूछा भी था. समझ में आया क्या? ओके, तो TH माइनस TL का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो वी कैन से एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल इंक्रीज, बट इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रिड्यूसेस. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? फिर दो टर्म्स और पता होना चाहिए. अभी HSC में इन्होंने कार्नोट साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल, ऐसे दो साइकिल्स का डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, ओके, बस इसमें यही पता है तो काफ़ी है कि विच आर द प्रोसेस इन्वॉल्व. कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है? कार्नोट में यू हैव दो एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 आइसो. तो जो मैं येलो में बना रहा हूँ वो आइसोथर्मल है और जो वाइट में बनाया है वो एडिया है. ठीक है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू हैव. ऐसा कोई ग्राफ बन जाएगा. ओके, तो लेट्स नेम इट क्विकली. इसको नाम दे देते हैं. ये ABCD यहाँ से ऐसे जा रहा है. ठीक है, ओके, और यहाँ पे अब यहाँ पर सी व्हाट इज AB हियर. AB कौन सा प्रोसेस है? AB, हाँ, दिस इज एक्चुअली आइसोथर्मल एक्सपांशन. क्योंकि सी A से B में लुक एट द वॉल्यूम, सी द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम A टू B, राइट? ग्राफ उस तरफ जा रहा है. इज इट मेकिंग सेंस? इसको निकाल देते हैं. तो A से B इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, B टू C. दिस वाइट वन इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. समझ में आया क्या? तो B टू C क्या है? इट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडिया एक्सपांशन है ये. समझ में आया क्या? C टू D, ठीक है, आइसो कंप्रेशन. ठीक है, एंड D टू A, एडिया कंप्रेशन. समझ में आया क्या? ओके, इफ यू रिप्लेस दिस एडिया प्रोसेस बाय आइसोकोरिक प्रोसेस तो दैट विल बी योर स्टर्लिंग साइकिल. मतलब इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन. समझ में आएगा? तो यहाँ पे सेम ABCD प्रोसेस है. ठीक है, हाउएवर द ओनली डिफरेंस हियर इज कि हमने जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको रिप्लेस कर दिया आइसोकोरिक से. समझ में आया क्या? तो ये पता होना चाहिए तुमको. एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, तो ये एक प्रोसेस डायग्राम देख लेना. आई थिंक दैट इज इनफ. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG. ओके, तो विल स्टार्ट द प्रेशर डेरिवेशन, बट उसके पहले कुछ टर्म्स पता होना चाहिए हमको. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन वेलोसिटी. Mean velocity, or we can call it average velocity of gas. So if you have n number of molecules, each molecule is having different velocities v1, v2, v3 up to n. So this is the definition of average, है ना? Summation of v I, where I goes from 1 to n divided by n, isn't it? ये तो पता है हमको, right? Average निकाला बस. Okay, और अगर हमने mean square velocity बोला है, VMS, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VMS, या इसको लोग V स्क्वायर लिख देते हैं. ओके, तो क्या होगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब क्या है? इट इज यू स्क्वायर ईच वेलोसिटी बिफोर यू टेक द एवरेज, इजंट इट? स्क्वायर कर लो फिर एवरेज निकालो. तो समेशन V स्क्वायर अपॉन n ऐसे लिख सकते हैं. फाइन, ओके, एंड लास्टली VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ना, रूट मीन स्क्वायर. इसमें क्या करते हैं हम लोग कि वी कैलकुलेट द बी स्क्वायर वेलोसिटी एंड वी रूट इट, इजंट इट? तो इट इज रूट ऑफ वी स्क्वायर, क्योंकि उसको ऐसे बुक में हमारे वी स्क्वायर बार लिखा हुआ है. ओके, इन HSC बुक दे हैव पुट एस इसको वी स्क्वायर बार. ओके, बट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है विच इज रूट ऑफ
वी स्क्वायर अपॉन एन, और आई कैन से इसको स्क्वायर कर दो साइड में, क्या मिलेगा? समेशन ऑफ वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन वी आर एम एस स्क्वायर. मुझे ये चाहिए रहेगा, ठीक है. आई विल नीड दिस रिलेशन इन द डेरिवेशन, इसलिए मैंने करा दिया ये. ओके ठीक है, अभी शुरू कर सकते हैं हम लोग. ओके, कपल ऑफ एजम्पशन हियर. ओके, स्टार्ट विथ प्रेशर डेरिवेशन. फर्स्ट डेरिवेशन इज प्रेशर डेरिवेशन. इसका फ्लो सुन लो पहले तो. ओके, प्रेशर निकालना है तो विल एज्यूम दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट, है ना. तो प्रेशर चाहिए तो मतलब पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना. ठीक है, और फोर्स निकालना है तो क्या करोगे? उसको चेंज इन मोमेंटम निकालो और टाइम से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो फर्स्ट विल फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फिर उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा, फिर उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर मिल जाएगा. दैट इज द फ्लो ऑफ डेरिवेशन. ठीक है, ये फ्लो दिमाग में रखना बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉलो दैट. अभी देखो ये क्या कर रहे हैं, एक they assume a cubic container. Let's say there's a container which is the shape of cube. इसका लेंथ L लिया है तो we can say that volume available for motion V will be L cube. ठीक है, और इसमें n number of molecules है. there are n number of molecules. Okay, each n molecules ले लो. each molecule has mass m. each of mass small m. So therefore I can write total mass capital M would be what? It will be n into small m. ठीक है, ये कुछ assumption है, और भी कुछ assumption समझो. ओके, लेट्स assume that ये velocity of this m1 particle, ऐसे तो मास सबका सेम ही है, velocity of this m1 particle is some v1. ओके, तो we can always write this velocity in terms of components. हम इसका component ले सकते हैं. इसको बोलेंगे x component of this velocity will be called as v1x, y component will be called as v1y, and z component is v1z. तो we can always write, see हम हमेशा ऐसे v1 वेक्टर को we can write इसको v1x i cap plus v1y j cap plus v1z k cap, or I can write v1 square is equal to v1x square plus v1y square plus v1z square, isn't it? लिख सकते हैं ना ऐसा. ठीक है, सिमिलरली हम बाकी पार्टिकल्स के लिए भी लिख सकते हैं v1 v2 v3, ऐसे n पार्टिकल्स के लिए इफ आई टू राइट तो vn इज vnx i cap vny j cap plus vnz k cap, which implies vn square should be equal to vnx square plus vny square plus vnz square. ठीक है, अब इसको ऐड कर दो. If I add तो I'll get लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, है ना. तो विल गेट समेशन v स्क्वायर एडिंग. ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे सब x कॉम्पोनेंट ना, v1 x स्क्वायर, v2 x स्क्वायर, v3 x स्क्वायर, vn x स्क्वायर. तो इट इज समेशन ऑफ ऑल द x कॉम्पोनेंट. यू कैन राइट समेशन ऑफ ऑल द x कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, vx स्क्वायर लिखा, एंड सिमिलरली दिस इज vy स्क्वायर एंड vz स्क्वायर. ठीक है, ऑल्सो वी कैन से दैट कि गैसेस विल एक्सपांड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. बाय सिमेट्री वी कैन से कि ऑल दिस कॉम्पोनेंट्स शुड बी इक्वल. तो वी कैन ऑलवेज राइट कि ये सब कॉम्पोनेंट्स का वैल्यू इक्वल ले लेते हैं हम. ओके, सिमेट्री के हिसाब से. तो दिस इज 3x स्क्वायर, तो ये भी मुझे चाहिए होगा. समझा? तो दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. ओके, समेशन v स्क्वायर इज 3 टाइम्स समेशन ऑफ vx स्क्वायर. ठीक है, तो ये समझ में आएगा सबको. तो ये रिजल्ट, ये मास और वॉल्यूम, और पीछे वाला रिजल्ट चाहिए मुझे कि समेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन वी आर एम एस स्क्वायर. तो ये कुछ रिजल्ट्स विल रिक्वायर्ड. तो व्हाट इज द assumption here? There are n number of molecules, each of mass m in a cubic container of length L. Okay, all particles are moving at different velocity v1 v2 v3, and hence we could write this also. समझ में आया क्या? ऐसे 2-3 वर्ड्स लिख दो. ओके, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू डेरिवेशन. अब देखो क्या करेंगे इसमें. डेरिवेशन शुरू कैसे करते हैं? दे विल assume that कि लेट्स से इज द वॉल, 2 वॉल्स ले लो इसी कंटेनर के. लेट्स से एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से 1. ओके, उसका हम x कंपोनेंट देख रहे हैं, तो v1x. तो लेट्स से इट वेंट टू द वॉल, उसको हिट करा, फिर वापस आया ऐसे. नाउ ऑल द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. दिस इज पार्ट ऑफ एजम्पशंस ऑफ KTG, है ना. तो जो भी कोलिजन्स है परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी से वो गया है, आफ्टर कोलिजन इज गोइंग टू कम बैक विद द सेम वेलोसिटी, राइट. ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से जाके वापस आने में डिस्टेंस कवर्ड विल 2L, isn't it? Okay, so we can say that time required
to cover this distance will be equal to distance upon speed, isn't it? Distance is 2L upon speed is v1x, है ना? And change in momentum, ठीक है, will be equal to how much? It will be final momentum minus initial momentum. P final is how much? P final is this one, right? ठीक है, m v1x minus इसको अगर पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेके, राइट? तो इनिशियल इज माइनस एम वी वन एक्स, तो क्या मिला 2m v1x. तो वी हैव चेंज इन मोमेंटम, वी हैव टाइम, ओके, डिवाइड करो क्या मिल जाएगा? फोर्स, ठीक है. तो फोर्स बाय फर्स्ट पार्टिकल विल बी इक्वल टू p डेल्टा p अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, दैट विल बी 2m v1x अपॉन 2l अपॉन v1x. 2 बाय व्हाट डू गेट? m v1x स्क्वायर बाई l. तो यू कैन से एवरेज फोर्स ऐसे बोलते हैं. टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि एवरेज फोर्स इज एवरेज चेंज इन मोमेंटम. तो ये एवरेज ही है, मतलब पूरा 2l डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल गए, वापस यहाँ से शुरू करें, घूम के वापस आने में पूरा एवरेज निकाला हुआ है. पूरा 2l डिस्टेंस का जो है वो लिया है हमने. ओके, वी हैव नॉट टेकन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, वी हैव टेकन एवरेज वैल्यूज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. ओके, ठीक है. F1 मिल गया. दिस इज फोर्स बाय वन पार्टिकल. इफ यू वांट नेट फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स इफ यू वांट, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 बाय ऑल द पार्टिकल्स Fn. तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पे? यही सेम टर्म को हम ऐड कर देंगे, राइट? तो m बाई एल v1x स्क्वायर प्लस m बाई एल v2x स्क्वायर, है ना? तो वी कैन टेक m बाई एल कॉमन, v2x स्क्वायर एंड सो ऑन vnx स्क्वायर. तो बेसिकली क्या मिलने वाला है यहाँ पर? इट इज समेशन ऑफ vx स्क्वायर, इज इट? x कॉमन स्क्वायर है ना? एंड इफ यू वांट प्रेशर, तो प्रेशर इज सिंपली व्हाट? प्रेशर वुड बी फोर्स अपॉन एरिया. एरिया इज एल स्क्वायर, राइट? एरिया ऑफ द वॉल विल बी एल स्क्वायर यहाँ पे. ओके, तो क्या मिलेगा? इट विल बी m बाई एल समेशन vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. तो वी हैव m बाई एल क्यूब समेशन vx स्क्वायर. नाउ यू स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग. ये प्रेशर है, दिस इज टोटल प्रेशर. चलो सब्स्टिट्यूशन नंबर 1 कि एल क्यूब को वॉल्यूम लिख सकते हैं, पीछे लिया है ना, ठीक है. ठीक है ना, एल क्यूब एज वॉल्यूम, तो वहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम. दिस इज v. ओके, समेशन ऑफ vx स्क्वायर. समेशन vx स्क्वायर क्या है? इट इज एक्चुअली है ना v समेशन v स्क्वायर बाई 3, तो डाल दो, ठीक है. समेशन v स्क्वायर बाई 3, ओके, एंड इनटू m. एंड व्हाट इज समेशन v स्क्वायर? यू सी द डेफिनेशन ऑफ RMS, ठीक है. इट इज n VRMS स्क्वायर. तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, n VRMS स्क्वायर. तो प्रेशर विल बी इक्वल टू स्मॉल m n VRMS स्क्वायर अपॉन 3v. n इंटू m क्या है? टोटल मास. तो m अपॉन v 3 VRMS स्क्वायर. एंड मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो वी हैव प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर. अब टेक्स्ट बुक में क्या किया है कि उन्होंने VRMS को ऐसे सिंबल दिया हुआ है, v स्क्वायर बाहर ऐसे कुछ दिया है, ठीक है. ओके, आई होप यू गॉट दिस. ये है डेरिवेशन. समझा क्या? अब इससे ना कुछ कुछ फार्मूलाज निकाल सकते हैं, मतलब डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है, पर सडन फार्मूलाज वी नीड. ओके, फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फार्मूला. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स. के ऑफ गैस क्या लिखेंगे? इट विल बी हाफ टोटल मास इंटू VRMS स्क्वायर, इजंट इट? ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी हाफ m. सी ये जो फॉर्मूला है, इसको मास अपन वॉल्यूम में कैसे लिखते हैं ये, है ना? P is m VRMS स्क्वायर अपॉन 3 है ना, तो m VRMS स्क्वायर इज 3PV, isn't it? तो m VRMS स्क्वायर के प्लेस पे I can put 3PV. तो यहाँ पे लिखा 1/2 3PV लिख सकते हैं. तो 3/2 PV और 3/2 nRT. तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स. दिस इज KE फॉर गैस. इफ यू वांट KE पर मोल, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल. 3/2 RT डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कर दो. इफ यू वांट KE पर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का चाहिए, तो डिवाइड बाय Na कर दो, ठीक है. व्हाट इज R अपॉन Na? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है. एंड इन सडन
क्वेश्चन आई थिंक इन टेक्स्ट बुक दे हैव आस्क्ड के पर मास आल्सो, मतलब के पर केजी, काइनेटिक एनर्जी पर केजी। तो पर केजी बोला अगर तो काइनेटिक एनर्जी पर ऑफ गैस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिवाइड बाय मास, राइट। तो इट इज 3/2 nRT डिवाइड बाय m। व्हाट इज n? एंड उसको m अपॉन m नॉट लिख सकते हैं ना हम लोग, गिवन मास होगा। तो ये कट करो तो यू विल गेट 3/2 RT बाय m नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ओके। काइनेटिक एनर्जी पर केजी पूछ लिया, पर मॉलिक्यूल पूछ लिया, पर मोल पूछ लिया, जस्ट काइनेटिक एनर्जी, यू शुड नो द फॉर्मूले, ओके। बहुत सारा क्वेश्चन बता के लोग पूछ लेते हैं इसमें, तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। ऑल्सो ये फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला मिलता है हमको कि वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर RMS वेलोसिटी, ओके। समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस कि प्रूव दैट RMS वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √T, ऐसे डेरिवेशन पूछ लेते हैं। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड यू कैन राइट कि फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन से दैट कि VRMS इज एक्चुअली रूट ऑफ क्या आएगा 3p/ρ आ जाएगा, isn't it, okay। and then you can obviously write your हाँ इसको लिखोगे m अपॉन v और इसको लिखोगे फिर है ना pv को nRT लिख दो, ओके। एंड देन अगेन एक स्टेप डाल दो कि n इज नंबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट। तो इफ यू डू दैट तो तुमको जो फेमस फॉर्मूला है मिल जाएगा, ठीक है, 3RT/m0। So it's very trustable formula and they ask you a lot of questions in HSC on this, okay। Also we have proved that कि VRMS is proportional to √T। तो ये भी 1-2 मार्क के लिए कभी पहले पूछते थे, पता नहीं अभी डालना होगा डाल देंगे, ओके। प्रूव दैट VRMS is proportional to √T और they can ask you just that numerical। समझ में आया क्या? Any questions? Prove CP minus CV equal to R, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग मेयर्स रिलेशन, ओके। वेरी सिंपल प्रूफ इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि du इज NCV/dt। अभी हमने डिस्कस किया राइट डेरिवेशन में कि वी कैन राइट du एज NCV/dt, विच इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ du इटसेल्फ। And let's say assume that कि we are taking a gas through a isobaric process, okay। तो isobaric process ले जा रहे हैं तो dq is equal to du plus dw, right, okay। तो since it is isobaric process can we say that यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो dq होगा it will be NCP/dt, isn't it, because isobaric process मतलब जो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी है उसको वी राइट CP, राइट। कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है, ठीक है। तो DQ को NCP/dt लिख सकते हैं और दिस इज वन थिंग दैट वी नो। तो आई पुट इट हियर, यहाँ पे NCP/dt लिखा है इसको, एंड DU का फॉर्मूला वी नो इट इज NCV/dt, ओके। ऑल्सो व्हाट इज DW, है ना, वी कैन राइट दैट इज PdV और इट इज nRdt, है ना। तो ऑल्सो वी कैन से कि DW इज PdV और nRdt, दोनों ही लिख सकते हैं इसको। तो ये सब सब्स्टिट्यूट के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे dt n बाय हो जाएगा, CP इज CV प्लस R और सिंपली CP माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है। तो काफ़ी आसान डेरिवेशन है, यू जस्ट हैव टू राइट कि वी नो दिस डेफिनेशन एंड देन वी आर टेकिंग अ गैस थ्रू आइसोबेरिक प्रोसेस, and for isobaric we can write that TQ is NCP/dt, substitute these two values here and then substitute the value of work done as PdV और nRdt, वो substitute करो, solve करो, I think you should get the answer, है ना, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थर्मोडायनामिक्स के बाद में लिया so that we know all of these definitions, ठीक है। What is the next one? Next one is हाँ, next one में they have asked us कि derive the value of CP CV, है ना, फॉर मोनो डाई और ये सब चीज़ के लिए, राइट, है ना। तो अब देखो ये CP/CV कैसे निकालते हैं, बट थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए होगा, ओके। वी स्टार्ट विद मोनोटॉमिक, बट डू यू रिमेंबर व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो चाहिए हमको यहाँ पर। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है भाई, कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes to half kT of energy, that you should know, okay। each degree of freedom contributes to half kT of energy। उसमें भी क्या होता है
कि वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? वी हैव ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? वी हैव रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, एंड वी हैव वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो जो ट्रांसलेशन है वहाँ पे सिंगुलर मोशन है, मतलब या तो एक्स में जा रहा है या तो वाई में या जेड में, तो ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम गिव यू हाफ के टी ऑफ एनर्जी, वो सही है। रोटेशन में भी या तो तुम एक्स में यू आर रोटेटिंग और यू आर रोटेटिंग ऑन द वाई एक्सिस और ऑन द जेड एक्सिस, तो ईच रोटेशन विल गिव यू हाफ के टी, दैट इज ऑल्सो फाइन, ओके। पर वाइब्रेशन में क्या होता है कि इफ यू आर वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन देयर इज अ टू एंड फ्रो मोशन, इजंट इट, ओके। तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है कि टू एंड फ्रो दोनों का भी के टी प्लस के टी, तो ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में के टी एनर्जी बढ़ता है ना, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पूछ लेते हैं वो लोग कि ट्रांसलेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है, रोटेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है और वाइब्रेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो वाइब्रेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, के टी, ओके। नाउ वी कैन डू दिस वेरी सिंपली। देखो अगर मोनो का बात करें तो मोनोटॉमिक गैस जो है, ओके, इट कैन मूव ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। तो बेसिकली इट विल हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट जो एनर्जी होगा उसका इट विल बी 3 इंटू हाफ के टी, है ना। इसको ई लिखा है एक्चुअली टेक्स्ट बुक में, तो वी कैन राइट ई ऑल्सो, ओके। तो दैट विल बी 3/2 के टी। बहुत सारे बुक्स उसको यू लिखते हैं, बट अब HSC ने इसको ई लिखा है, तो इसलिए मैंने ई लिखा। दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट, 3/2 के टी, ओके। एंड दिस इज वन मॉलिक्यूल, राइट। इफ यू वांट पर मोल एनर्जी पर मोल, तो क्या हो जाएगा, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम Na से, राइट, है ना। दैट विल बी 3/2 RT, है ना। एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ CV? CV is actually du upon n dt ना, ओके। इट इज बेसिकली एन एनर्जी पर मोल पर टेम्परेचर, ऐसा कुछ, है ना। तो विद दैट डेफिनेशन आई कैन जस्ट यूज दिस। मेरे पास पर मोल है, मतलब E अपॉन, व्हाट इज दिस इज E अपॉन n पर मोल है, राइट। एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर कर दिया तो आई विल गेट 3/2 R, तो आई गेट CV का वैल्यू, ओके। एंड CP क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज R, तो इट इज CV प्लस R, ओके। तो विच विल बी सिंपली 3/2 R प्लस R, तो इट विल बी 5/2 R, ओके। तो यू गेट CP का वैल्यू ऑल्सो, ओके। एंड इफ दे आस्क यू अबाउट गामा, गामा इज CP by CV, तो दिस इज हाउ मच, 5/3। तो दिस इज HSC वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। अगर पूछा अगर कि मोनो के लिए डिराइव करो तो ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने को, ठीक है। बोलना पड़ता है कि हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, दिस एनर्जी पर मोल, एंड देन CV का फॉर्मूला इज एनर्जी पर मोल डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो वी कैन जस्ट गेट दिस वैल्यू, एंड देन CV से CP निकाला एंड देन गामा निकाला। अगर पूरा एक क्वेश्चन आ गया थियोरेटिकल तब ऐसे करना पड़ेगा, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए तो वी कैन डायरेक्टली यूज द रिजल्ट्स। समझ में आएगा? कैन वी डू फॉर डाई ऑल्सो? डाई के लिए भी कर लेते हैं, डायटॉमिक। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ कि यू हैव मॉलिक्यूल लाइक दिस, तो वी कैन हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस इट कैन रोटेट अबाउट 2 एक्सिस, राइट। तो प्लस 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। तो वी कैन से एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी निकालना है, तो इट विल बी F विच इज़ 5 इंटू हाफ के टी, विच विल बी हाउ मच, 5/2 kT, and then you can get energy per mole, okay, and that will be a 5/2 RT, and then you can say CP will be energy per mole divided by temperature, that will be simply 5/2 R. Then you can say CP is CV plus R, which will be 7/2 R, and then you can say gamma is CP by CV, which will be 7/5. तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। लास्टली अगर पॉली एटॉमिक बोल दिया, पॉली के लिए थोड़ा सा हम ध्यान दो, मतलब बिकॉज ये HSC में थोड़ा अलग करते हैं, ओके। पॉली के लिए भी से दैट कि इट विल ऑलवेज हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब X, Y और Z में जा सकता है, प्लस इट विल हैव 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मतलब इट कैन रोटेट अबाउट X, रोटेट अबाउट Y, रोटेट अबाउट Z ऑल्सो, ओके। प्लस इट कैन हैव, यहाँ पे लिखते हैं N वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझा क्या, ठीक है। तो N वर्ड यूज कर लेते हैं लोग। अगर व्हाट इज N हियर, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड 3 वाइब्रेशनल। अब ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना मिलेगा, 3 इंटू हाफ के टी, राइट। एंड रोटेशनल से भी सेम 3 इंटू हाफ के टी, ओके। बट वाइब्रेशनल विल गिव यू टू हाउ मच,
इट विल n kT है ना. तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 3/2 प्लस n. तो टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज हाउ मच? इट इज 3 प्लस n kT हो गया ना. ओके एंड हेंस यू कैन से एनर्जी पर मोल कितना हो गया भाई? इट विल बी 3 प्लस n RT. Okay, and then if you want CV, it is energy per mole by temperature, that gives me 3 plus n R. And if you want CP, you add one more R here, right? CV plus R, so it will be 4 plus n R, isn't it? Okay, and then if you want gamma, it will be CP by CV. तो कितना हो जाएगा भाई? 4 plus n upon 3 plus n. Remember what is n here? Number of वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो वो दिया है तो ऐसे कर लेते हैं. बाकी तो जनरली हम पॉली के लिए एफ यूज़ करते हैं, बट व्हेन यूज एफ मतलब दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना. तो HSC में ऐसे ही करते हैं इसको, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल प्लस n वाइब्रेशनल. तो विल स्टिक टू दैट. समझ में आया क्या? एक लास्ट डेरिवेशन भी कराए थे, वो रेडिएशन का डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, फटाफट खत्म करते हैं. बेस्ड ऑन रेडिएशन, वेरी सिंपल डेरिवेशन. इट इज़ बेसिकली यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1. फटाफट करते हैं, कुछ खास नहीं है. ओके, यू नो दैट कि इफ यू मटेरियल, ओके, एंड इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन इट, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. इधर दैट हीट विल बी रिफ्लेक्टेड, ओके, लेट्स से QR इज द अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, और इट इज एब्जॉर्ब्ड. तो लेट्स से QA इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, और इट इज ट्रांसमिटेड टू समथिंग, सम अदर मटेरियल और एनवायरनमेंट. ओके, इसको बोलते हैं QT, amount of heat transmitted, amount of heat absorbed, amount of heat reflected. समझ में आया क्या? तो कैन वी से दैट Q is equal to, okay, QA plus QR plus QT divide by Q. टाइम पास एकदम. ठीक है, तो what do you get? 1 is equal to QA plus Q plus QR plus by Q, QT plus by Q. What is QA1 Q called? Quantity of heat absorbed per heat incident is called as coefficient of absorption, small a. ठीक है, quantity of heat reflected per heat incident is coefficient of reflection, and quantity of heat transmitted per heat incident is called as coefficient of transmission. और यही है a plus r plus t equal to 1. समझ में आया क्या? तो इतने डेरिवेशन अगर आते हैं तो KTG और थर्मो हो गया.